with the news break that's just coming in, this one in relation to the anti-Hindu remarks that were made by Udayanidhi Stalin. In fact, a statement that's coming from senior Congress leader Acharya Pramod Krishnam, who's said that Udayanidhi was born out of illicit union. That has been the remark that's been made by Pramod Krishnam of the Congress, who says that Udayanidhi Stalin was born out of an illicit union. This, of course, after the growing outrage over the anti-Hindu remarks that were made by the DMK minister Udayanidhi Stalin, who said that Sanatan Dharma is like dengue and malaria and that it should not be opposed, rather it must be altogether abolished. First up, listen in to a reaction that's coming from the Tamil Nadu BJP chief Annamalai. Speech that he gave, I saw his speech also. I don't think he was speaking verbatim. If somebody is speaking verbatim, looking at people, then we can say probably the words got slipped out. He was reading from a prepared text, which means consciously the text was prepared. In a stage, he was reading it line by line. We can very clearly make out from his body language, where he says like cholera, like dengue, like mosquito, like COVID. Sanatana should be eradicated. Eradication of a particular culture. If I can equate some other word to it, it's called genocide. That is what Hitler did for Jews. And that is the level to which a sitting minister of Tamil Nadu government speaks it. So not only Hindu religion who are practicing, every person in India, all the 142 crore people of India should condemn it. Opposing is something different. Political ideology you can oppose, that's okay. You oppose, somebody will give another alternate ideology, that's okay. It's up to the people to accept it. Now you believe, since you have the power in hand and you are brazen enough to say we want to eradicate, it only shows what is the level of mindset they have. Let's go across to Aishwarya Kapoor, who's joining us now. Aishwarya, that's a big statement that's coming from Acharya Pramod, who says that Udayanidhi Stalin was born out of illicit union. Absolutely. At this point of time, Felicia, we need to understand that there is an uproar within the INDA alliance as well, which is not only the BJP, because the kind of comments which have been made by the Chief Minister's son, those are comments which just cannot be accepted under any circumstance. And it's really ironical that how the Congress party is quiet about it. How are these parties, the other parties, just not ready to counter Udayanidhi's comments? The way he has compared Sanatan Dharma to mosquitoes, to malaria, and then he's even... Aishwarya, just hold your thoughts, yes. Yes. We have Acharya Pramod Krishnam online. मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, क्या ये अलायंस का मतलब ये है कि कुछ भी किसी भी प्रकार की टिप्पणियां की जाएंगी सनातन धर्म पे और कांग्रेस पार्टी और बाकी सब चुप रहेंगे? आचार्य नहीं ऐश्वर्या, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बीजेपी ये उसका विषय नहीं है। ये विषय है सत्य सनातन धर्म पे हमले का। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। सनातन को मिटाने की कोशिश कई बार की गई है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, मुगलों का और अंग्रेजों का। बाबर, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर लंग, लॉर्ड मैकाले, इन सब ने सनातन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन सनातन नहीं मिटा। जो कोशिश लॉर्ड मैकाले ने की वही कोशिश आज तमिलनाडु के मंत्री स्टालिन ने की है। मुझे लगता है कि लॉर्ड मैकाले की रूह इसमें घुस आई है। पूरे देश के अंदर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इनको बर्खास्त करना चाहिए। पर ये कैसी प्रवृत्ति है? What kind of people are they, आचार्य, जो मतलब मस्कीटो, मलेरिया, डेंगू से तुलना कर रहे हैं सनातन की? सनातन मतलब सनातन तो ऐसा धर्म है जो सबको शांति का मैसेज देता है, और ये कह रहे हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए। ये क्या सोच है? हिंदुओं को गाली देना एक फैशन बन गया इस देश में। हिंदू आस्था का खिलवाड़ करना एक फैशन बन गया है। हिंदुओं को गाली देने के लिए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए एक होड़ लग गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सत्य सनातन धर्म पूरी दुनिया में, भारत
की संस्कृति और भारत की बात करता है, और अगर सनातन नहीं है तो भारत कैसे बचेगा? तो ये देशद्रोही भी है, सनातन द्रोही नहीं है ये बयान भारत विरोधी भी है। तो लेकिन आचार्य मैं आपसे दोबारा मैं आपको रोक रहा हूँ आचार्य। आपने कहा ठीक है कंप्लेंट होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, लेकिन क्या सभी राजनेताओं को चुप रहना चाहिए? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, क्या इन सबको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल आपके प्रिय मित्र जिनको आप आजकल इतना डिफेंड करते हैं आचार्य, क्या उन सबको आगे आके बोलना नहीं चाहिए आचार्य? इस पे सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा? वाय आचार्य? देखिए, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश जो करेगा वो सनातन विरोधी भी कहलाएगा और भारत विरोधी भी कहलाएगा। सनातन को मिटा करके भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसे भारत को मिटाकर सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता स्टालिन के बयान का समर्थन करता है या चुप रहता है तो इसका मतलब है कि वो सनातन को मिटाने की इस साजिश में शामिल है। मैं सभी नेताओं से, करोड़ों हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इस बयान की निंदा की जाए, इस बयान का विरोध किया जाए, ताकि कोई आगे इस तरह सनातन धर्म के विरुद्ध इस तरह की गंदी, ओछी और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी ना कर सके। आचार्य आप बोल रहे हैं कि कोई इस तरह की टिप्पणी ना कर सके, लेकिन कांग्रेस के नेता कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं, और मैं आप अंग्रेजी भली बात ही समझते हैं, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं आचार्य, प्लीज सुनिएगा। इन द कॉमन parlance of Tamil Nadu, Sanatan Dharma means caste hierarchical society. Why is that everyone who is battling for SG comes for the privileged segment who are the beneficiaries of the hierarchy? There was no call of genocide against anyone. This is a mischievous spin. Sanatan Dharma is nothing but code for a caste hierarchical society. सनातन धर्म क्या कास्ट हायरार्किकल सोसाइटी है आचार्य? सनातन धर्म में जाति के लिए कोई जातिवाद सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, कर्म के आधार पर वर्ण सुनिश्चित होता था और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था ही सनातन धर्म की सद्भावना की मुख्य शक्ति है। जो लोग सनातन धर्म को जातिवाद से जोड़ रहे हैं ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, ये पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म को मिटाने की साजिशें जो लोग करते आए हैं वो कान खोल के सुन लें। सनातन धर्म न मिटा है न मिटेगा। सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट गए, सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। आचार्य आपका इस पे थॉट बहुत क्लियर है, लेकिन आप प्रियंका गांधी से बात क्यों नहीं करते? आप तो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर, आप उनसे बात करते रोज, आप इस बारे में क्यों नहीं बोलते कि जब भी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो चुप रहती है? राहुल गांधी चुप रहते हैं, कार्ति चिदम्बरम बोल रहे हैं ये कास्ट सिस्टम होता है, हायरार्किकल कास्ट सिस्टम है सनातन धर्म। वहां पे उदयनिधि स्टालिन बोल रहे हैं डेंगू, मलेरिया, क्या क्या, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, और उसके बाद कांग्रेस के नेता आके डिफेंड कर रहे हैं। आचार्य इससे एक गलत मैसेज जाता है। ऐश्वर्य, पहली बात तो ये है कि कोई मेरे धर्म पर हमला करेगा तो उसका जवाब देने के लिए मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली देते हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है। ये दुर्भाग्य है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी पर चलती है। महात्मा गांधी की हर एक सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भारत के संविधान पर राम दरबार का चित्र अंकित है। कांग्रेस पार्टी की जो मूल विचारधारा है वह तो सनातन की है। सत्य सार्थक सर्वदा, सत्यमेव जयते। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं तो कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। ये विषय भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का है। ये विषय भारत के अस्तित्व का है। ये विषय सत्य सनातन धर्म का है। सत्य सनातन धर्म और भारत को अलग नहीं किया जा सकता है। जो सनातन धर्म पे हमला कर रहा है इसका मतलब है वो भारतीय संस्कृति पे हमला कर रहा है, वो भारत पे हमला कर रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।